Hey students, my name is Ankesh Sharma and welcome you back on our channel Mission CPF Hub. Today we'll be discussing chapter 8 of class 10th NCERT, that is how do organisms reproduce. So by organisms, as you all know, organisms are anything that is a living being. And by the process of reproduction, I mean, if I have to explain you this term in basic layman's language, then I'll explain you by this example. Suppose this is me, if I produces something, two bugs, ठीक है, one was red in color and the other was green in color, ठीक है. तो ये जो दो बग्स थे, क्या होता है कि बाहर से कोई पैरासाइट आता है या फिर कुछ से बाहर से कोई भी यू कुड से एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनिजम्स जो हंट करता है इनको, ठीक है, जो इनको खाता है, ठीक है, वो रेड वालों को तो खा जाता है बट ग्रीन वालों को नहीं खा पाता. क्यों नहीं खा पाता? बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, वो ग्रास के अंदर छुप जाएंगे, ठीक है, तो ग्रास के अंदर दिखेंगे नहीं, रेड वाले इजीली दिख जाएंगे, इसीलिए वो मतलब इनकी जो पॉपुलेशन वो डिक्रीज हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है. तो यही जो होता है कि वेरिएशन की वजह से फायदा होता है. अगर मान लीजिए ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी है अगर वो ग्रीन इन कलर होती है, ठीक है, तो हायर चांसेस है कि इनकी जो प्रोजेनी है वो आगे जाके सर्वाइव कर पाए. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. So as we have discussed that sometimes the variations that occurs are very drastic in nature. So if I have to give you example of a bacteria who is living in temperate waters, okay, and if the water temperature were to be increased by global warming or because of global warming, the bacteria would die, and if some bacteria survives in that water would be resistant to high temperatures, okay. So this is how variations occurs, okay. So let's move forward. Now we'll be discussing the mode of reproduction that is used by single organisms, or you could say single celled organisms, okay. The first process would be fission. And what do you mean by fission? Fission means to separate out, okay, मतलब अलग अलग हो जाना, दो टुकड़े होना, तीन टुकड़े होना, this is fission, ठीक है. First we'll be discussing binary fission. Binary fission means single fission, okay. So this is very prevalent in amoeba, okay. Amoeba is a single celled organism, okay. So what happens is, this is its food vehicle, this is pseudopodia, and nucleus is present in the center, okay. What happens is, slowly the nucleus divides itself and the amoeba distributes itself into two parts, and this is how it reproduces itself. So you have to remember one thing, that amoeba reproduces with the help of binary fission. This is important in this part. Let's move forward. There are some bodies that show multiple fission, but by multiple fission means, I mean, the body divides into multiple parts. Like in amoeba the body was dividing into two parts, and in multiple fission the body divides into multiple organisms, you could say multiple new bodies, okay. So this is very prevalent in plasmodium, okay. So why I'm highlighting all these organism, as in multiple fission I have highlighted plasmodium, and in binary fission I have underlined this amoeba. So all this is important in respect to exam point of view. So you have to remember all these name of organisms that use these modes of reproduction. So let's move to our next part, that is fragmentation. So what happens in fragmentation? So what is the process in fragmentation? सपोज करिए ये एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये भी छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होते ही क्या हो जाएगा, ये अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेगा, ठीक है. एंड ये जो टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स अपने आप में इतने कैपेबल होते हैं कि ये दूसरे न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दिस इज फ्रेगमेंटेशन. इसका एग्जांपल याद रखना है आपको. द एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज स्पाइरो वगैरह. तो देखिए याद रखिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो अपने सेल्स को डिवाइड करते हैं. सेल्स, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये दो सेल आगे फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, और हर एक सेल डीएनए की कॉपी लेते जाएगा, तो डीएनए की कॉपी ऐसे डिवाइड होती जाएगी.
सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स वेज होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, देखिए रीजनरेशन का मतलब समझते हो कि अगर आपने एक बॉडी थी उसको कहीं से भी टुकड़े कर दिए, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में फिक्स्ड एरियाज थे, वो वही फ्रेगमेंट्स अलग होते थे, वही फ्रेगमेंट अपने आप को अपने आप में कैपेबल थे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के। बट इन द केस ऑफ रीजनरेशन you can the organism in any ratio in any proportion, उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे ना वो खुद को रिप्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो आप उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, कहीं से भी काट दीजिए, ये पार्ट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो प्लेनेरिया है, ठीक है, हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रोसेस है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, देखिए जैसे हाइड्रा के अंदर आप, मैंने आपको बताया कि रीजनरेशन भी होता है हाइड्रा में, इसके अलावा और क्या होता है हाइड्रा में इसके अंदर इसके अलावा बडिंग प्रोसेस भी होता है। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रा जब ग्रोथ लेता है, ठीक है, तो इसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर ओवर ग्रोथ होती है, ठीक है, वो जो पार्ट्स होते हैं उसे हम बड कहते हैं। वो बड क्या होता है, वो बड अपने आप में कैपेबल होता है एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो बड से याद रखिएगा बडिंग, एंड दिस बडिंग इज वेरी प्रेवलेंट इन हाइड्रा। नेक्स्ट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव? वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? if I have to consider this term in layman's language, I would be considering this term vegetative as similar to vegetables. Okay, so you could create a relation in between vegetative and vegetables, because देखिए कई plants यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई plants हैं जिनके कुछ parts होते हैं, roots, stems and leaves develop into new plants, and these parts are basically responsible for producing vegetable. ये हम किस में यूज करते हैं जनरली? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शुगर केन प्लांट्स होते हैं हमारे, शुगर केन प्लांट्स के अंदर ये बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है। रोजेस के अंदर, ग्रेप्स के अंदर जो कमर्शियल कर सकते हैं हम, ठीक है, जनरली उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज कि जितने भी प्लांट होते हैं जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज, जैस्मिन, जो भी अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी को लूज कर चुके हैं रिप्रोडक्शन करने की, वो इस प्रोसेस के थ्रू सीड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एडवांटेज ऑफ दिस process vegetative propagation. Another advantage of this vegetative propagation is कि जो भी आपका जो रिजल्ट आएगा, मतलब न्यू फ्रूट आएगा, दैट वुड बी वेरी सिमिलर टू द पेरेंट। ओके, जैसे आपका पेरेंट होगा वैसे ही आपका आने वाली नेक्स्ट प्रोजेनी होगी। तो इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास हाई क्वालिटी सीड्स है, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन फ्रॉम दोज हाई क्वालिटी सीड्स, तो होगा क्या कि आप वैसे ही सेम हाई क्वालिटी सीड्स की हाई क्वालिटी फ्रूट्स पैदा कर पाओगे उनके थ्रू, जैसे पहले हाई क्वालिटी सीड्स ने प्रोड्यूस किए थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको यील्ड ज़्यादा मिलती है और रेवेन्यू अच्छा खासा होता है। तो ऑल दिस प्रोसेस एंड थिंग्स आर यूज्ड इन बेसिकली इन कमर्शियल पर्पज। नेक्स्ट पार्ट इज टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर इज नथिंग बट यू कुड से आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ एन प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम प्लांट के अंदर से ना जो भी ग्रोइंग टिश्यू होता है, जहाँ पे मतलब आप कह सकते हो ग्रोथ होती है, ठीक है, उस टिश्यू को हम निकाल लेते हैं। देखिए बेसिकली लीव्स होती हैं या फिर कोई भी आप कह सकते हो जो आपका ग्रोइंग पार्ट होता है, उस पार्ट के टिप से हम टिश्यूज को रिमूव कर लेते हैं। उन टिश्यूज को हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, ठीक है। उस मीडियम में जहाँ पर पहले से कुछ सेल्स या फिर कैलस प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर बेसिकली नथिंग, दीज आर डेकोरेटिव प्लांट्स। यू कुड से जो भी डेकोरेशन यूज होता है आपके, जैसे रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है, इनके वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिक रोज दैट इज रेड इन कलर। देर आर वेरी a lot of hybrids of rose, and those hybrids of rose are known as ornamental plants. So the next process is spore formation. So what is spore formation? You might have seen that spores are seen on the structure of on the bread. तो देखिए ये स्पोर्स होते हैं ना, इनके जो स्ट्रक्चर को आप चेक करोगे तो इसमें ना क्या होता है, इलोंगेटेड टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड जो पार्ट्स होते हैं इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर आपके ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ब्लॉब लाइक मतलब कि ऐसे राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये अपने आप को नए प्लांट में प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, मतलब कि इट कुड प्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेनी फ्रॉम
these spores. Okay, so this process is basically known as spore formation. So where we can see this process is very prevalent in Rhizopus. So let's move forward. So now we'll be moving to the next half of our chapter, that is sexual reproduction. So what do we mean by sexual reproduction? So until now we have discussed a sexual reproduction. So what happens in a sexual reproduction? We need only one parent to produce new progeny. But in the case of sexual reproduction, we need two parents to produce a next generation. Okay, so याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट प्रोजेनी को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की हमें जरूरत होती है. ठीक है, तो देखिए व्हाई दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेफर्ड ओवर अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसके लिए देखिए, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर की स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें होता ये है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. और देखिए दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो एक पेरेंट का डीएनए जाएगा यहाँ, और यहाँ से दूसरे पेरेंट का डीएनए जाएगा. इस केस में सिर्फ एक पेरेंट का डीएनए जाएगा, तो हाई चांसेस है कि जब सिंगल डीएनए जाएगा तो जो वेरिएशन है वो बहुत मिनिमल होगी. ठीक है, बट यहाँ से जब दो डिफरेंट डीएनए जाएंगे और वो दोनों डीएनए आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट डीएनए की कॉपीज जाएंगी और वो प्रोड्यूस करेंगी नेक्स्ट सेल को. ठीक है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि हमारे पास दोनों डीएनए का मिक्स मिले, या फिर आप कह सकते हो कि हाई वेरिएशन हमारे पास यहाँ पे मिले. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास वेरिएशन ज्यादा होती है. वेरिएशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वी कुड प्रोड्यूस वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेनीज. ठीक है, मतलब कि बाय डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेनी आई डू नॉट मीन दैट वी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट स्पीसीज, बट आई मीन कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हों. ठीक है, डिफरेंट आप कह सकते हो उनके अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज दिखें. ठीक है, तो दीज आर द वेरिएशन दैट वी कुड सी इन सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होती है. वेरिएशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हम अडप्ट कर पाएंगे अपने आप को. जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, वो बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था हमने. ठीक है, तो अगर दो प्रोजेनी आपस में फर्टिलाइज करती है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है कि जो इनके इनिशियल हाफ में जब इन्होंने अपनी लाइफ जी है, ठीक है, इनिशियल 30s में इन्होंने जो एवरेज मीन टेम्परेचर देखा था वो मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, और जो बाद के 30s में देखा उन्होंने वो 40 डिग्री सेल्सियस था एवरेज मीन टेम्परेचर. तो आपको देखिए पता लग जाएगा कि जो आने वाला टेम्परेचर हो सकता है 40 से अबव होगा. ठीक है, तो इनकी बॉडी में कॉपीज बन चुकी हैं. कैसी कॉपीज बन चुकी हैं? ऐसी कॉपीज जो कि बॉडी को सिग्नल्स पहुंचा चुकी हैं कि आने वाला टेम्परेचर और हाई होने वाला है, तो अपने आप को वैसे ही तैयार कर लीजिए. ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होगी अगले डीएनए में. ठीक है, तो ये जो अगला डीएनए या फिर अगले सेल की कॉपी बनेगी, ये अगले सेल की कॉपी आपकी मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स टेम्परेचर होगी और वो ज्यादा जी सकती है. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस प्रोजेनिस, बिकॉज उनकी बॉडी ज्यादा टेम्परेचर झेलने के लिए बनी नहीं थी. ठीक है, बिकॉज इन द टाइम दे वर बॉर्न उस टाइम पे इतना टेम्परेचर नहीं था. ठीक है, सडनली टेम्परेचर में राइज हुआ तो उनकी बॉडी उसको अडप्ट नहीं कर पाई. कुछ उन्होंने डीएनए की कॉपीज इन्फॉर्मेशन स्टोर की, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर की. तो जब ये बॉडी इनिशियली प्रोड्यूस होगी, ये नी प्रोजेनी, ठीक है, इसके पास इनिशियल डाटा वही प्रेजेंट होगा कि आपको हाई टेम्परेचर मिलने वाला है. तो ये बॉडी को स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में. सो आगे चलते हैं. देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए वो दो डीएनए डिफरेंटली कंबाइन होते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बीच में ना एक प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम ये होती है कि अगर दो डीएनए एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं while combining DNAs in the process of fertilization, as we have discussed कि दो कॉपीज बनती है. ठीक है, तो देखिए अब जब इतनी नई जनरेशन बनेगी, नई जनरेशन के अंदर आपको पता है दो कॉपीज मिलेंगी. जब इतना सारा डीएनए कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए एवरी सेल कंटेन्स द डीएनए. ठीक है, तो जब इतने सारे सेल्स मिलके उसके पास जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी दोनों जगह से जाएंगे, तो इट वुड हैव अ लॉट ऑफ डीएनए एंड you could say that twice the amount of DNA one of the single parent contains. ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन अरोज हो सकती है. तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर
स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गन्स आर बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे जस्ट हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट दे हैव रिसीव्ड, ठीक है। जो जितना उनको अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए रिसीव हो रहा है उसको वो हाफ कर देते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी आपके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके पास डीएनए ट्वाइस ही रहता है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये मेंशन्ड है, देखिए। तो यहाँ मेंशन्ड है कि जितने भी हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं और हाफ ही डीएनए होता है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो अगर आधे क्रोमोसोम्स होंगे तो हाफ ही डीएनए होगा, ओके। तो ये मेंशन्ड है कि यहाँ पे दो जर्म सेल्स फ्रॉम टू पेरेंट्स कंबाइन करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। इट विल रिजल्ट इन री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन, ठीक है। तो जो भी आपकी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनका कंट्रोल को कौन चेक करेगा, जो भी आपका ये जो स्पेशल सेल्स होते हैं, बेसिकली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये चेक करेगा आपका, ठीक है। जो आपके सेल्स हैं वो डेफिनेट रहें, ठीक है, ज्यादा ना हो या कम ना हो, ठीक है। तो देखिए होता क्या है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर इज अ मेल पेरेंट एंड अ फीमेल पेरेंट, ठीक है। मेल पेरेंट से मेल गेमेट्स जाएंगे या फिर इन्हें हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये मेल गेमेट्स जाएंगे फीमेल सेल से, फीमेल बॉडी से या फिर यूकेट से फीमेल सेल से फीमेल गेमेट्स जाएंगे, या फिर इसे आप कह सकते हो फीमेल की जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए हर बॉडी के अंदर ना डिफरेंट होते हैं, मतलब बाय बॉडी आई मीन डिफरेंट स्पीसीज, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स, और यू कुड से फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो होता क्या है इनके अंदर, देखिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, इसके अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। किसी किसी प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल प्लांट्स मिलते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके अंदर सिर्फ मेल पार्ट्स होते हैं फिर फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देर आर सम यूनिसेक्सुअल प्लांट, देर आर सम बाइसेक्सुअल प्लांट्स। जो बाइसेक्सुअल होंगे उनके पास दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, और जो यूनिसेक्सुअल होंगे उनके पास सिंगल होंगे। तो यूनिसेक्सुअल में आप याद रख सकते हो पपाया है, वाटरमेलन है। बाइसेक्सुअल में याद रख सकते हो हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, ठीक है। तो याद रखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ना जो मेल पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टामेन, ठीक है। स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव system and flowering plants, okay। So how do you remember this? You could remember this by focusing on the last three words of the system, men, it contains men, ठीक है। स्टामेन में men present है, तो men मतलब मेल, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज कार्पलस, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज कार्पलस, ठीक है। जो स्टामेन होता है ना, स्टामेन के अंदर याद रखिएगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर मेल के जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पोलेंस बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका पोलन, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए इसके अंदर एंथर होता है, एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर द मेन मेल यू कुड से मेल गेमेट्स, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मतलब जो मेल साइड से जो फ्यूज करने के लिए आगे पार्टिसिपेट करते हैं, वो आर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। जो फीमेल के साइड से फ्यूज करता है वो होता है एग्स होते हैं, ठीक है। तो जो कि कार्पलस क्या होता है, कार्पलस के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ओवरी, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज स्टिग्मा। ओवरी सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, बीच में स्टाइल होता है एंड ऊपर स्टिग्मा होता है, ठीक है। ओवरी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये नीचे देखिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसका, ठीक है। सो दिस पार्ट इज ओवरी एंड द मिडिल मोस्ट पार्ट इज स्टाइल, ये वाला ये आपका स्टाइल है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है। तो जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो सबसे पहले आके स्टिग्मा पर रुकते हैं। स्टिग्मा में यहाँ पे ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूबल्स के थ्रू ये आपके स्टाइल से होके ओवरी के अंदर आते हैं। ओवरी के अंदर जो फ्यूजन का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये आगे टेक प्लेस होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि मेल की तरफ से
पोलन ग्रेन्स जाएंगे, ठीक है, और फीमेल के एग्स होते हैं, ये एग्स और पोलन ग्रेन्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करके ये फर्दर सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कभी फ्लावरिंग प्लांट से जो पोलन्स होते हैं, ठीक है, अगर ये प्लांट है, मान लीजिए सपोज कर लिए पपाया का प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लावर है उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। तो अगर ये पोलन अपने फ्लावर का अपने फ्लावर पे जाके चला जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पॉलिनेशन तो हो जाएगा वहां भी, बिकॉज यहाँ पर देखिए यहाँ आपका स्टिग्मा के थ्रू ये ओवरी में जाएगा और ओवरी में जाके जो पोलन से फर्टिलाइज करेंगे और अगले सीड्स की प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है, इन द केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अगर आपका यूनिसेक्सुअल है तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका पॉलेंस है वो एक प्लांट से या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाएगा, ठीक है, और वहां जाके वो पॉलिनेशन को करवाएगा, ठीक है। तो जब सेम प्लांट या फिर सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है तो हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर पोलन ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनके एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। देखिए अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन जा रहे हैं तो वो अपने आप तो जाएंगे नहीं, ठीक है, या तो वो हवा की थ्रू चले जाएंगे, ठीक है, विंड के थ्रू, या वाटर के थ्रू पानी की तरफ बह के, या फिर एक एनिमल, जैसे एक एनिमल ने कोई सीड खाया, फ्रूट खाया, फ्रूट खा के उसने उसको सीड कहीं पर थूक दिया, ठीक है, तो वो जो सीड है वो दूसरे फ्लावर के साथ मिल गया, ठीक है, जो कि जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वहां फर्टिलाइजेशन अकर करेगा और नेक्स्ट प्रोजेनी की प्रोडक्शन होगी। देखिए जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो जाइगोट आपका जो प्लांट का जाइगोट है वो डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड होने के बाद क्या करता है वो एक टफ कोटिंग की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। वो जो टफ कोटिंग होती है वो अपने आप को सीड में कन्वर्ट करती है। तो याद रखिएगा कि जब आपका जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होता है, जाइगोट आपका पहले ओविल में कन्वर्ट होता है और ओविल आपका सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, ठीक है, एम्ब्रियो आपका सीड बन जाएगा, ठीक है। और जो आपकी ओवरी होती है वो क्या किसकी फॉर्मेशन करती है, फ्रूट की। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ओवरी आपकी किस में कन्वर्ट हुई है, ओवरी आपकी कन्वर्ट हुई है फ्रूट्स में, एंड आपका जो जाइगोट है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टाइम चेंजेस आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ह्यूमन की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हमारी बॉडी अर्ली टीनेज में आती है तो आपको पता है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। मेल एंड फीमेल के अंदर डिस्टिंग्विशन जो होती है वो उसी पीरियड में होती है, बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आपका जो सिक्रेशन होती है वो अर्ली टीनेज पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर अलग आपको एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, फीमेल के अंदर अलग एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे सेक्सुअल मैच्योरेशन आती है, बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है। इसी प्रोसेस के बीच में जो बॉडी होती है फीमेल की उसके अंदर एग्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो एग्स की प्रोडक्शन से जो फीमेल्स होती है वहां पे मतलब अपनी बॉडी को रेडी कर लेती है कि मतलब उस टाइम पे उनकी बॉडी के अंदर आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन अकर हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस, ठीक है। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब कि जो हमारे एब्डोमेन मतलब स्टमक है उसकी जो कैविटी उसके स्पेस से अलग प्रेजेंट होता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो टेम्परेचर होता है ना हमारी बॉडी का वो हाई रहता है जनरली, ठीक है। और जो टेस्टिकल्स होती हैं उनको टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए जो टेस्टिस है इनका टेम्परेचर लोअर होता है देन द बॉडी, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पर्म्स आर मेल germ cells and they are produced by testis, okay। तो देखिए इसके अलावा देखिए और भी पार्ट्स होते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक है वास डिफरेंस, ठीक है। वो क्या करता है, वास डिफरेंस आपका एक ट्यूब होता है, आप कह सकते हैं ट्यूब है, ठीक है। ये मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है आपके स्पर्म्स की, ठीक है।
वास डिफरेंस के अलावा देखिए कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी स्पर्म की सिक्रेशन को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये जो ग्लैंड होते हैं ये एक फ्लूइड की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि आपके स्पर्म है, स्पर्म को नरिश करती है, नरिशमेंट के साथ ये आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और इसकी जो मोबिलिटी है उसको इंप्रूव कर देती है, ठीक है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग रोल्स आर प्लेड बाय एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये देखिए ये जो टर्म है स्पर्माटोजेनेसिस, ये टर्म आपको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये बेसिकली इन्वॉल्व करती है अपने आप को इन द उस प्रोसेस से जिस प्रोसेस में आपके स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन होना, नरिशमेंट होना, ठीक है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, ये इस प्रोसेस से हमें पता लगता है, ठीक है। इसके बाद है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। मोटिलिटी मतलब मूव करना, तो मेच्योर करना मतलब कि उसको उस उतना लाइक करना कि वो आगे जाके फ्यूज कर सके, ठीक है। थर्ड है स्पर्माटोजेनेसिस एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है, मतलब दिस इज स्पर्माटोजेनेसिस इज साइंस बिहाइंड द स्पर्म्स। तो ये बेसिकली एक थ्योरी है, तो ये तो आपका हो नहीं सकती क्योंकि फंक्शंस में थ्योरीज कभी नहीं आती, ठीक है। फोर्थ है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म ओनली, तो ये मोटिलिटी में वर्क करता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब आपके वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है और जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म की एक तो ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करती है, दैट इज मोटिलिटी। उसके अलावा और क्या करता है, उसकी सीक्रेशंस को वो इंप्रूव करते हैं। सीक्रेशंस इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि उसकी मेच्योरिटी को बढ़ाते हैं। तो यहीं से देखिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है मेच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, पोलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन कोरोला, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पोलेंस है, यहीं पे था, जस्ट अ सेकंड, देखिए पोलेंस को कौन प्रोड्यूस करता है, पोलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन स्टामिन, ठीक है। स्टामिन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी प्रोडक्शन के लिए, पोलेंस की प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन है डी, एंथर, ठीक है। तो एंथर आपका यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब जो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उसका क्या सही प्रोसेस है। तो सीडलिंग मतलब सीड्स प्रोड्यूस होना, तो सीड्स तो आपके लास्ट में प्रोड्यूस होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे कैसे खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। पॉलिनेशन याद है ना आपको, पॉलिनेशन क्या होता है, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसमें आपके पोलन्स एक जो मेल आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो जाके फीमेल में ओवरी के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे वो ओवरी में जाके एग्स का फ्यूज करेंगे और सीडलिंग्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो सीडलिंग इज अ वेरी लेटर प्रोसेस, ये स्टार्टिंग में हो नहीं सकता, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये भी हमने पढ़ा था थोड़े पहले कि एम्ब्रियो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रियो कब प्रोड्यूस होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी है पहले पॉलिनेशन, तो बिल्कुल पॉलिनेशन सबसे पहले होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ, जब पोलन ग्रेन्स मिलेंगे तो आपस में फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा, ठीक है, किस में, वो डिवाइड करेगा खुद को ओव्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद आपका एम्ब्रियो की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, एम्ब्रियो से फिर सीडलिंग्स बनेंगे। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अपना जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको एक तो यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, एक सेट मिलेगा, पेयर ऑफ ओवरी मिलेगा, यूट्रस है, ठीक है, सर्विक्स एंड वजीना है, ठीक है। तो देखिए जब एक फीमेल गर्ल बॉर्न होती है, एक फीमेल बॉर्न होती है, तो ओवरीज उसके अंदर पहले से इनिशियली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो सॉरी ओवरी तो होती है, ओवरी के अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। एग्स, इमेच्योर एग्स का मतलब क्या होता है, इमेच्योर एग्स का मतलब है कि वो एग्स जो इनकेपेबल है फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। जब एग्स अपने आप को कैपेबल कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के तो वो मेच्योर एग्स कहलाते हैं, ठीक है। जब वो प्यूबर्टी के एज तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो ये जो एग है ये हर महीने एक एग अपने आप ही क्या होता है कि ओवरी तक पहुंच जाता है, ठीक है।
अब जब ये ओवरी तक पहुंच जाता है, ओवरी तक पहुंचता किस लिए, ओवरी तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये जो एग होता है यही यही स्पर्म के साथ फ्यूज करता है और आगे जाके नया न्यूक्लियस और नया सेल की फॉर्मेशन करता है। तो ये वहां तक पहुंचता है ओवरी तक, ठीक है। अब ओवरी में अगर इसको मेल गेमेट सेल नहीं मिलता तो उस टाइम पे क्या करता है, ये खुद को ब्रेक कर लेता है, ठीक है। जब ये अपने आप को ब्रेक कर लेता है तो उस टाइम पे जो आपकी जो ओवरी है उसके पास ब्लड लाइनिंग्स होती हैं, वो ब्लड लाइनिंग्स ब्रेक हो जाती हैं और वहां से ओवरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये मेंशन नहीं यहाँ पे, बट टोल्ड यू मे बी दैट इज इन नेक्स्ट टॉपिक। हाँ यहाँ पर प्रेजेंट है तो अभी कर लेंगे उसको हम, ठीक है। तो देखिए जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज कब होगा, जब मेल गेमेट दैट इज स्पर्म, फीमेल गेमेट दैट इज एग दैट इज प्रोड्यूस बाय ओवरी, जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो मिलके क्या होगा, दोनों फ्यूज करके एक नए सेल की फॉर्मेशन करेंगे। नए सेल की फॉर्मेशन करने से क्या होगा, वो सेल अपने को फर्दर डिवाइड करता जाएगा। डिवाइड करने से क्या होगा, पहले उसके अंदर उस सेल के अंदर डेटा था सारा, ठीक है, एक पूरी बॉडी का डेटा था। अब वो बॉडी का डेटा धीरे धीरे खुद को डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो वो डेटा बताता है कि उसके हैंड का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, आईज कैसा होना चाहिए, हेयर्स कैसा होना चाहिए। तो वो डेटा पूरी बॉडी के अंदर डिवाइड होने लग जाता है, ठीक है। तो उसी से आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जो एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो को आपको पता है कि इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर ही जो आपका एग है वो आपका फ्यूज हुआ, ठीक है। फ्यूज होकर वो एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एग जब फ्यूज होता है तो फ्यूज होकर वो एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जाइगोट डिवाइड होता है, डाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना लेता है। तो ये जो एम्ब्रियो होता है जब ये एक न्यू बॉर्न बेबी की प्रोडक्शन कर रहा है तो इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। तो न्यूट्रिएंट्स इसको कहाँ से मिलती है, एक सेल होता है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका ओवरी के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये सेल क्या करता है, इस सेल के पास विलाई होती है, आपको पता होगा विलाई हमने पहले रीड की थी। विलाई क्या होता है, विलाई आप कह सकते हो इनके पास न्यूमरस कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, ठीक है। तो ब्लड को कैरी करके चलते हैं अपने साथ। तो ये ब्लड प्रोवाइड करती है फर्दर एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो उस ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको उसके नरिशमेंट में हेल्प करता है। तो देखिए अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है कि जो आपका एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो वो ओवरी की लाइनिंग पे जाके अपने आप को ब्रेक कर लेता है, ठीक है। और सॉरी ओवरी की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और वहां पे विलाइज प्रेजेंट होती है। विलाइज प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, वहां पे ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस every month and is known as fertilization, and it usually lasts for about 2 to 8 days. Okay, so next topic is reproductive health. So by reproductive health we mean कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस टीनेज पीरियड जहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप को नरिश कर रही है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेनी, उस टाइम पे आपको कैसे खुद को नरिश करना है। इस टाइम पे हमें एडवाइस किया जाता है कि वी शुड नॉट कंज्यूम जंक फूड एंड वी शुड ओनली ईट हेल्दी फूड, बिकॉज उस टाइम पे जो आपकी बॉडी होती है उसको हाई न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज बॉडी हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एग्स इन द केस ऑफ फीमेल्स दैट यू नो जो हर महीने आपका जाके फर्टिलाइज अगर नहीं हो पा रहा तो वो ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वीकनेस भी हो सकती है। तो इस टाइम पे कहा जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मिक्सअप देना पड़ता है, मतलब बैलेंस डाइट आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। ओके, so children should be responsible for the reproductive health along with children's their parents should also take care of their reproductive health, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको पता है जैसे जब आपकी टीनेज की एज है उस टाइम पे आप देखोगे कि हमारे मूड में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। आपको सडन यू कुड से कॉन्शियसनेस होने तो होती है, कभी कभी नर्वसनेस होती है एंड फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मेंटली भी खुद को मतलब अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए और भी कई सारी चीजें जिससे आप मेंटली खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट द पीरियड टू गेट मैरिड, ठीक है, बिकॉज
as we all know that in the period of teenage that starts from 13 years of age, the female body start start getting ready for the for, you could say, uh, maturing of the eggs, but it is not completely ready to give birth to a new baby. But we have seen in India that few, or you could say few states in India have banned this child marriage things, because आपको पता है कि चाइल्ड मैरिज में क्या होता है कि बच्चों की शादी कर दी जाती है, एंड उस टाइम पे फीमेल की बॉडी रेडी नहीं थी, तो क्या होता है कि आपकी जो न्यूबॉर्न बेबी है वो हो सकता है वो वीक हो, या फिर हो सकता है कि जो मदर है उसकी हेल्थ को खतरा हो, वो भी उसकी भी डेथ हो सकती है. सो दिस प्रैक्टिस शुड बी encouraged, and as गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्यू अदर हेल्थ सेंटर्स, आपने देखा होगा कि वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाउ यू कुड प्रिवेंट अर्ली एज प्रेगनेंसी. ठीक है, अर्ली एज प्रेगनेंसीज को क्यों अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, और हमने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टेन एज रख रखी है जिसकी जिससे पहले शादी को हमने इलीगल मान रखा है. ठीक है, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से रखा गया है. तो इस टाइम पे बॉडी अपने को रेडी करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे बॉडी रेडी होती है. ठीक है, बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो अराउंड 16 to 17 ईयर्स की एज के बाद आती है फीमेल्स के अंदर. ठीक है, तो इसीलिए 18 ईयर्स की एज रखी गई लीगल एज, बट दिस शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो. ओके, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद अवर जो भी हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कैसे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, कैसे व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिकॉशंस. ठीक है, तो प्रिकॉशंस तीन तरह के होते हैं, एक फिजिकल, एक केमिकल, ठीक है, एंड एक सर्जिकल होते हैं. ठीक है, तो फिजिकल में जैसे आपने सुना होगा कि जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सॉरी मेल जर्म सेल्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस होने से रोक लेते हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं. ठीक है, तो इनका एग्जांपल है इसका एग्जांपल है कॉन्डोम्स. एंड केमिकल बैरियर्स में क्या होता है कि वी यूज सर्टेन केमिकल्स, एंड these chemicals are being placed in the ovary. For the example of these chemical barriers is copper T. ठीक है, it is placed in uterus to prevent pregnancy. Besides that there are surgical barriers. ठीक है, जिसमें सर्जरी में सर्जरी के थ्रू आपका जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसको रोक दिया जाता है कम्प्लीटली. ठीक है, तो आप इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया जाता है, जिससे फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होती. ठीक है, एंड आपको पता है कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज करे, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ वेरियस रिसोर्स डिप्लीशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन और जो आपका पॉपुलेशन मैनेजमेंट है इसके ऊपर आपको ध्यान, मतलब सारी कंट्री को ध्यान रखना जरूरी है इसके बारे में. ठीक है, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, बिकॉज हायर द पॉपुलेशन, हायर द रिसोर्स क्रंच, एंड हायर यू कुड सी द अनएम्प्लॉयमेंट. तो बहुत सारे लॉसेज हैं इसके. ठीक है, सो विल फिनिश दिस टॉपिक राइट हियर. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, एंड एज यू ऑल नो दैट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर सेमिनार और सॉरी वेबिनार on our mentorship program, where Prathamesh sir and Karthik Patel sir presented why this mentorship program that we are starting is important for UPSC CPF AC 2021 एग्जाम. ठीक है, जैसे आपको पता है एग्जाम 50 दिन के आसपास रह गया. ठीक है, और 50 दिन का ही हमारा प्रोग्राम है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो. एनरोल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो स्वप्निल वालवन सर को, या फिर आप मुझे भी पर्सनली डीएम करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो. मैं टेलीग्राम हैंडल is Ankit Sharma, Ankit_101 1001. Okay, so thank you so much. Keep learning and thank you. अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया है.